बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अफजल कुरैशी, lecturer in chemistry from Government Neoligal College, Tandwatan. Today we discuss interchemistry chapter number 9, oxygen containing organic compound. Chapter number 9 related to organic chemistry, and in this chapter we study oxygen containing organic compounds, means those organic compounds which contain carbon, hydrogen and oxygen. For example, acetic acid. Acetic acid contain carbon, hydrogen and oxygen. Same ethyl alcohol contain carbon, hydrogen and oxygen. Propyl aldehyde also contain carbon, hydrogen and oxygen. So in this chapter we study those families of organic compounds which contain carbon, hydrogen and oxygen. 7 families of organic compounds which contain carbon, hydrogen and oxygen. For example, number first, alcohol. Alkyl radical means hydrocarbon combined with hydroxyl group. This called alcohol. Number second, phenol. Phenol is the family in which aromatic compound or phenyl react combined with OH group, hydroxyl group. They are called phenols. Ethers. Oxygen both valencies satisfied by hydrocarbon part. They are called ethers. Number 4, aldehydes. In aldehyde functional group combined with alkyl radical, so they are called aldehyde. Ketones. If carbonyl group both valencies satisfied by alkyl radical are called ketone. And carboxylic acid. If carboxyl group combined with alkyl radical, they are called carboxylic acid. And number 7, esters. Esters are derivatives of carboxylic acid. If carboxylic hydrogen substitute by alkyl radical, so they are called ester. So they are 7 families which contain carbon, hydrogen and oxygen. आज हम जो टॉपिक लेंगे वो हमारे पास इंटरकेमिस्ट्री का है, ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मीन्स वो कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो। मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेन करता है। इथाइल अल्कोहल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोपाइन एल्डिहाइड कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड की 7 फैमिलीज हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद होता है। जैसे नंबर फर्स्ट है अल्कोहल। हम यहाँ पर एलिफेटिक अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्काइल ग्रुप अटैच होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ, तो ये कहलाते हैं अल्कोहल। सेकेंड फैमिली है फिनोल। फिनोल में एरोमेटिक और फिनाइल ग्रुप अगर कंबाइन हो, अटैच हो OH के साथ, तो ये हमारे पास कहलाते हैं फिनोल। नंबर थर्ड हमारे पास है ईथर के अगर ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसीज अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो ये हमारे पास कहलाते हैं ईथर। नंबर 4 अल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास कहलाता है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो अगर अल्डिहाइड ग्रुप अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच हो तो ये हमारे पास कहलाते हैं अल्डिहाइड्स। नंबर 5 कीटोन। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर दोनों जानिब अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो ये हमारे पास कीटोन। नंबर 6 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कि अगर कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच हो अल्काइल ग्रुप के साथ तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। और नंबर 7 हमारे पास ईस्टर है, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं कि कार्बोक्साइल ग्रुप के हाइड्रोजन की जगह पर अगर R ग्रुप मौजूद हो तो ये हमारे पास कहलाते हैं ईस्टर। तो इस तरीके से हम इन्हें पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कंपाउंड कौन सी जो वो फैमिली से रिलेट करता है। उसके बाद फिर हम वन बाय वन इन तमाम के तमाम फैमिलीज की नॉमेनक्लेचर को जो वो डिस्कस करते हैं। नाउ वी स्टार्ट नंबर फर्स्ट अल्कोहल। Alcohol are aliphatic organic compounds in which hydroxyl group attach to the carbon atom of alkyl radical. Aliphatic organic compounds in which alkyl group attach to hydroxyl group attach to carbon atom of alkyl group, so they are called alcohols. Alkyl radical hydrocarbons which is derived from alkane. For example, CH3OH methyl alcohol, alkyl group attach OH group, so it is example of alcohol. Ethyl alcohol, ethyl group attached to hydroxyl group,
so it is an also example of alcohol. Alcohol classify on the basis of number of OH. For example, if one OH group is present, they are called monohydrate. If two OH group present, they are called dihydric. Same trihydric, tetrahydric, pentahydric means polyhydric. Then we discuss nomenclature of alcohol. Two methods are discussed. One is common names और second is iopaic names. अल्कोहल को जब हम स्टडी करते हैं तो अल्कोहल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच होता है कार्बन एटम के साथ, कौन से, अल्काइल रेडिकल के, मतलब अल्काइल ग्रुप अटैच होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ, ये हमारे पास कहलाते हैं अल्कोहल्स. मिसाल के तौर पर मिथाइल अल्कोहल CH3OH, CH3 हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, OH के साथ अटैच होता है तो अल्कोहल. इसी तरह इथाइल अल्कोहल, इथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप है और OH के साथ अटैच होता है तो ये हमारे पास कहलाते हैं इथाइल अल्कोहल. फिर हमारे पास अल्कोहल्स को हम क्लासिफाई करते हैं OH की बुनियाद पर कि कितने नंबर ऑफ OH है. अगर एक OH ग्रुप हो तो वो अल्कोहल्स कहलाते हैं मोनोहाइड्रिक, दो OH ग्रुप हो तो ये हमारे पास कहलाते हैं डाइहाइड्रिक. इसी तरह जब हम इनकी नॉमेनक्लेचर लेते हैं तो नॉमेनक्लेचर के लिए हम दो मेथड, दो सिस्टम यूज करते हैं. एक हमारे पास कहलाते हैं कॉमन नेम्स और नंबर सेकंड हमारे पास कहलाते हैं आयोपेक नेम्स. नाउ इन नॉमेनक्लेचर फर्स्ट वी डिस्कस कॉमन नेम्स. इन कॉमन नेम्स alkyl group give name first and then OH given name as a alcohol, means alcohol give names alkyl alcohol in common names. For example, CH3OH methyl, CH3 methyl and OH alcohol, so its common name is methyl alcohol. Same C2H5OH is ethyl alcohol. Then the alcohol also divided into primary, secondary and tertiary alcohol. Depend on hydroxyl group attached with which carbon? Carbon primary, secondary and tertiary. OH group attached with carbon. Carbon has four valencies. One valency is satisfied by OH, then remain three valencies. If in three valencies, one valency combined with carbon bonded to carbon and two valencies bonded to two hydrogen, so this carbon is called primary carbon and the structure called primary alcohol. Same, if in three valencies, one valency of carbon combined with bonded with hydrogen and two valencies of carbon bonded with two carbon, so this carbon is called secondary carbon and this structure called secondary alcohol. And same, if the carbon attached with three carbon or bonded to three carbon, then this carbon is called tertiary carbon and the structure called tertiary alcohol. For example, CH3, CH2OH, here carbon attached with only one carbon, so this is called primary alcohol, name is primary ethyl alcohol. Here carbon bonded with two carbon atom, so this structure is secondary, so name is secondary 1, 2, 3 propyl and last alcohol. And here carbon bonded with three carbon atom, so this carbon is tertiary carbon and the compound is called tertiary alcohol. So we classify on the basis of nature of carbon, primary, secondary and tertiary. पहले हम नॉमेनक्लेचर लेते हैं कॉमन नेम्स पे. तो कॉमन नेम्स में अल्कोहल को नाम दिया जाता है, पहले अल्काइल ग्रुप को नाम देते हैं और फिर OH को नाम देते हैं एज अ अल्कोहल. तो ये हमारे पास कहलाता है अल्काइल अल्कोहल. मिसाल के तौर पर CH3OH ये कहलाता है मिथाइल अल्कोहल, CH3 मिथाइल और OH अल्कोहल, जबकि C2H5 हमारे पास कहलाता है इथाइल अल्कोहल. फिर हम अल्कोहल्स को कार्बन की नेचर की बुनियाद पर के OH कौन से कार्बन के साथ अटैच है उसे हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. अब देखें कि ये जो कार्बन है, कार्बन के पास फोर वैलेंसीज होती हैं. एक वैलेंसी बॉन्डेड हो गई किसके साथ? OH के साथ. बाकी रह गई तीन वैलेंसी. अब ये वैलेंसी डिसाइड करती है कि ये कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है. अगर ये कार्बन से बॉन्डेड हो ओनली वन कार्बन के साथ और दो OH हो तो ये कार्बन हमारे पास कहलाता है प्राइमरी कार्बन और स्ट्रक्चर कहलाती है प्राइमरी अल्कोहल. जैसे हमारे पास CH3, CH2OH
अब यहाँ पर ये कार्बन अटैच है ओनली वन कार्बन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा प्राइमरी, और ये हमारे पास इथाइल ग्रुप है तो ये होगा प्राइमरी इथाइल अल्कोहल। इसी तरह अगर ये कार्बन जो है वो 2 कार्बन के साथ अटैच हो तो हमारे पास ये कहलाता है सेकेंडरी कार्बन, मींस OH अगर अटैच हो सेकेंडरी कार्बन के साथ तो ये कहलाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे यहाँ पर OH के साथ जो कार्बन है वो 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो ये हमारे पास कहलाते हैं सेकेंडरी, और टोटल जो CH3 CH3 प्रोपाइल तो ये सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। इसी तरह अगर OH अटैच हो टर्शरी कार्बन के साथ तो ये कहलाते हैं टर्शरी अल्कोहल। और टर्शरी कार्बन क्या होगा कि अगर कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच हो तो ये हमारे पास कहलाते हैं टर्शरी कार्बन। फॉर एग्जांपल ये कार्बन 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच है तो ये हमारे पास टर्शरी हो गया। और CH3 ब्यूटाइल ग्रुप है तो ये होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये हमारे पास नॉमेनक्लेचर होती है अल्कोहल्स की कॉमन नेम, जिनमें हम उन्हें पहले अल्काइल ग्रुप को नाम देते हैं फिर OH को। इसी तरह OH के साथ का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन की अटैचमेंट की बुनियाद पर इन्हें क्लासिफाई डिवाइड किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में। नाउ आयोपिक नेम्स ऑफ अल्कोहल। आयोपिक नेम जब हम अल्कोहल के लेते हैं तो अल्केन को हम चेंज लाते हैं, जो भी हम पैरेंट चेन का नेम देते हैं उसमें अल्केन के E के साथ E को हटाकर OL ऐड करते हैं जो हमारे पास कहलाते हैं अल्केनॉल। मिसाल के तौर पर CH3OH कहलाता है मिथेनॉल, C2H5OH हमारे पास कहलाता है इथेनॉल। इसी तरह ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसमें हम क्या किया, ये चेन वो हमने सिलेक्ट की, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए हमेशा प्रायोरिटी कहां से होगी, जहां से OH करीब होगा। 1 2 पर OH है और यहाँ से 1 2 3 पर OH है तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे जहां से OH करीब हो। 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या है कि 3 के ऊपर एक ब्रांच रेडिकल मौजूद है जो हमारे पास क्या है मिथाइल रेडिकल। तो फर्स्ट चाहिए वो रेडिकल को ब्रांच को नाम देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 3 मिथाइल। फिर उसके बाद OH की पोजीशन देंगे 2 और कितने कार्बन की चेन थी 4 की, तो ये हमारे पास कहलाएगा ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। या इसे हम ब्यूटेन 2 ऑल भी नाम से सकते हैं। 3 मिथाइल मतलब 3 कार्बन के ऊपर मिथाइल की ब्रांच मौजूद है और ब्यूटेन 2 ऑल 4 कार्बन की हमने चेन सिलेक्ट की है और सेकंड पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप मौजूद है तो ये इसका नेम होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल और 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। फिर हम एक और स्ट्रक्चर लेते हैं तो अब यहां पर हम सेम चाहिए वो कार्बन की चेन सिलेक्शन करते हैं। अब क्या है कि दोनों जाने OH ग्रुप चाहिए वो सेम पोजीशन पर मौजूद है, 1 2 के ऊपर OH मौजूद है और यहां से भी 1 2 के ऊपर OH मौजूद है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर सिर्फ OH है जबकि यहाँ पर OH के साथ एक ब्रांच भी मौजूद है। तो अब हम यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे ब्रांच को क्योंकि दोनों OH की पोजीशन चाहिए वो सेम है, लेकिन एक साइड OH के साथ चाहिए वो एक रेडिकल भी मौजूद है तो अब हम प्रायोरिटी देंगे रेडिकल को। तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4। नाम किस तरीके से देंगे, पहले हम अल्काइल रेडिकल को नाम देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 2 मिथाइल। फिर उसके बाद जो हमने चेन सिलेक्शन की है वो 4 कार्बन ब्यूटेन और हमारे पास चाहिए वो 2 और 3 पोजीशन के ऊपर 2 OH मौजूद है तो ये हो जाएगा 2 3 डाइओल। अगर एक से ज्यादा हमारे पास ब्रांचेस होती है ग्रुप होते हैं तो हम उनके लिए क्वांटिटी के लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। जैसे यहाँ पर 2 OH ग्रुप थे तो हमने यहाँ पर यूज किया डाई तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 3 डाइओल। तो ये इस स्ट्रक्चर का नेम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 3 डाइओल। फिर उसके बाद क्या हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमने चाहिए वो नेम देना है। एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जब हम नॉर्मली कहीं पर भी किसी क्लोज स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं तो वहां पर हमारे पास तमाम एलिमेंट की जो नॉर्मल वैलेंसी होती है उन्हें जो है वो हमने सेटिस्फाई करना लाजमी होता है। कि जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो जब भी हम ओपन करें स्ट्रक्चर तो कार्बन की बॉन्डिंग 4 हो
हाइड्रोजन की 1 हो, ऑक्सीजन 2 हो, नाइट्रोजन 3, सल्फर 2, इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन 2, तो नॉर्मली जो है वो इनकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड। मिसाल के तौर पर ये ग्रुप है नंबर फर्स्ट कार्बन, अभी हमारे पास ये वैलेंसी इसके साथ है CH की, और बाकी यहां पर क्या है 3 रेडिकल है, मतलब 3 मिथाइल ग्रुप है, तो 1 2 3। अब ये तमाम के तमाम क्या हो गए, मतलब हर एक की वैलेंसी चाहिए वो सेटिस्फाई। फिर हमारे पास CH के साथ ये एक बॉन्ड 2 3 और एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पर इसके साथ OH है, OH के पास सिर्फ एक वैलेंसी होती है। उसके बाद आते हैं फिर हमारे पास है CH के साथ भी क्या है 2 वैलेंसी 1 2 3 और एक हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या आ जाएंगे 2 CH3। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे। फिर हम चेन लेते हैं तो स्ट्रेट हमारे पास चेन हो जाएगी। नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पोजीशन पर OH, और अगर राइट साइड से करते हैं तो 1 2 3 पर OH, मतलब दोनों जानिब नंबर ऑफ OH सेम पोजीशन पर है। लेकिन अब यहाँ पर अल्काइल रेडिकल की जो पोजीशन है क्वांटिटी है वो डिफरेंट है। लेफ्ट साइड से 2 रेडिकल मौजूद है, जबकि राइट साइड पर एक रेडिकल, तो हम प्रायोरिटी देंगे रेडिकल्स को 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास नेम हो जाएगा 2 2 3, 2 के ऊपर 2 मिथाइल और एक मिथाइल 4 पोजीशन पर, तो यह आ जाएगा 2 2 4 3, मतलब क्वांटिटी कितनी हो गई 3, तो हम लिखेंगे ट्राई। और ब्रांच कौन सी है, रेडिकल कौन सा है मिथाइल, तो यह आ जाएगा ट्राई मिथाइल। इसी तरह जो हमने चेन सिलेक्शन की है वो है 5 कार्बन की, तो यह आ जाएगा पेंटेन, और OH कौन सी पोजीशन पर है 3 पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 ओल। तो ये हमारे पास जो है वो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ओल। तो इस तरीके से हम अल्कोहल को जो है वो नॉमेनक्लेचर देते हैं आयोपेक सिस्टम के तहत। सिंपल रूल जो है वो ध्यान में रख लें कि पहले चेन सिलेक्शन करेंगे, फिर नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से OH ग्रुप करीब है, और अगर OH के साथ कोई ब्रांच भी मौजूद है तो प्रायोरिटी जो है वो साथ वाले ब्रांच को, मतलब 2 OH ग्रुप है और एक जगह पर सिर्फ OH है और एक जगह पर OH के साथ ब्रांच है, तो हम नंबरिंग ब्रांच की साइड से करेंगे OH की सेम पोजीशन होने की वजह से। इसी तरह हम पहले जो है वो नाम देंगे रेडिकल्स को, ब्रांचेस को, और फिर आखिर के अंदर नाम देंगे जो चेन हमने सिलेक्ट किए, लेकिन उसके साथ जो है वो हम OH को एज अ ओल नाम देंगे। तो ये हमारे पास नाम दिए जाते हैं एज अ अल्केनॉल। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में मालूम कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।